until this work until this work of art became the driving influence that drove group of women to study in the leading art schools all over the world, giving birth to a new generation of women artists that would make waves in the modern art. From just artistic motivations, women have become more active in the creative field by gradually succeeding in various fields of arts, fine arts, visual arts, and designs to performance arts. Due to the fact that we live in a fortunate time of records, while women can freely participate and grow to be creators of artworks, we have to further recognize and have fun their non-stop contribution with the aid of being greater supportive and constantly searching for the next extremely good female artist. Women are not only confined to being merely inspirational or virgin subjects of art. Women are actually the ones developing artwork at their personal freedom and creativity. The feminist critic has additionally helped to redress the nearly entire overlook of women artists, buyers, and peoples by using art records and to destabilize the stereotyped views of artwork made with the aid of women. During historic India, its Miles said that for about 3,000 years, the woman and simplest the women of Mithila have been making devotional artwork of gods and goddesses of the Hindu pantheon. It smiles no exaggeration than to mention that this artwork is the expression of the most true component of Indian civilization. In this reference here, I mentioned few names of female artists who belongs to various art fields and some are multi-talented among them. In this sequence, we can take the name of Dhruvi Acharya, Ailush Haluwalia, Anamika, Bhuribai, Ladobai, Bhil tribal artist, Uma Bardhan, Athasi Beru. Lots of name here I can mention, and I've given that names in my article. Here are painters. They are painters, script writers, muralists, sculptor. Women range across exclusive cultures, ethnic identities, training, sexual orientations, religious and time intervals, whilst recognizing those differences and that the term woman is not a uniform and essentialist category. This challenge guide offers a sampling of women's critical and interesting participation within the visual arts from a variety of cultures and durations and in diverse mediums and paperwork. During the addressing a women's self-help group conference in Bhopal, President Draupadi Murmu said that maximum participation of women is required to make India self-reliant and developed. The nation has to create an enabling environment so that women feel free and fearless and can make full use of their potential. The president added that women should inspire each other, help each other, raise their voices together for each other's rights, and move forward together on the path of progress. Actually, I am cut shorting it. For improving the repute of women additionally enhances their choice making capability at all stages, in all spheres of lifestyles, especially within the location of sexuality and duplicate.
This inflip is essential for the lengthy time period fulfillment of self-reliance programs. It could be suggested that self-reliance and self-development programs are simplest while steps have simultaneously been taken to improve the self-reliance of women. Thank you, ma'am. Thank you so much, Pooja, for your presentation. Thank you, हमारे ma'am. अगले डेलीगेट हैं प्रीति दीपक जाटकर from Walchand College, Solapur. May I know if he is there? No. Our next delegate is Durgesh Kumar from Jawaharlal Nehru Memorial PG College, Barabanki. Durgesh Kumar is also not visible here. हमारे next speaker, Neeraj Verma. Maybe is also not there. Yes. Yes. Shipra Saxena and Pooja say it. Preeti Deepak Jatkar, please put your camera on. अपना कैमरा प्लीज ऑन करिए प्रीति दीपक. I request Preeti Deepak Jatkar to please on her camera. We don't have any response. I request if we have Neeraj Verma with us from Ramnagar PG College, Barabanki. No. हमारे अगले डेलीगेट दीप्ति विश्वकर्मा, who is a research scholar from STRKM Aligarh. Not there. Shipra. Deepti Vishwakarma we have with us. We welcome Deepti Vishwakarma, who is a research scholar. हम आपका स्वागत करते हैं. आप प्लीज अपना दीप्ति जी आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है. Could you please speed it on? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन शुरू करें. Kindly start. दीप्ति प्लीज आप स्टार्ट करें अपना टॉक. हम आपको रिजॉइन करेंगे दीप्ति. We'll join you afterwards. हम रिक्वेस्ट करते हैं शिप्रा सक्सेना जो रिसर्च स्कॉलर हैं फ्रॉम द सेम कॉलेज STRKM अलीगढ़. Please join us and kindly give your presentation. Shipra Saxena. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. उपस्थित समस्त विदुषीजनों को मेरा प्रणाम. मेरा नाम शिप्रा सक्सेना है और मैं TRK PG कॉलेज से डॉक्टर श्रीमती ब्रजरानी शर्मा जी के निर्देशन में शोध कार्य कर रही हूँ. आज के सेमिनार में मेरे द्वारा गुप्त काल में महिलाओं की लोक संगीत में भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास किया जाएगा. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश जो हमारा है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है. भारत की विशालता और विविधता के कारण यहाँ का संगीत अपने अंदर विविध रूपों को समाहित किए हुए है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, रॉक, पॉप आदि बहुत से हैं ऐसे जो कि प्राचीन समय से ही विभिन्न भू स्थानों पर विविध संस्कृतियों के अनुरूप विकसित हुए हैं.
साधारणतः हम भारतीय संगीत की शुरुआत सामाजिक और धार्मिक जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में मानते हैं, जिसमें लोक संगीत वैदिक ऋचाओं के सदृश प्राचीन एवं मानवीय भावनाओं की सहजतम अनुभूति है, जिसे व्यक्ति लिखकर नहीं अपितु वाणी और अपनी भावनाओं के सहजतम और सुंदर मिश्रण से प्रस्तुत करता है। संक्षिप्त में कहें तो हम कह सकते हैं कि लोक संगीत की उत्पत्ति लोक मानस से हुई है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित मानवीय संस्कृति पर आधारित मानव समाज में व्याप्त जो संगीत है वही लोक संगीत है, जो कि मानवीय समाज और संस्कृति के साथ साथ जिसकी जटिलता बढ़ती गई और वर्तमान में शास्त्रीय संगीत के रूप में व्याप्त हुई। यानी वर्तमान में जो शास्त्रीय संगीत है वो प्राचीन लोक संगीत का ही विकसित रूप है। अब यदि हम लोक संगीत के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर बात करें, तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही लोक संगीत के क्षेत्र में महिलाओं की अनूठी भूमिका रही है। यह उनकी आत्म-अभिव्यक्ति एवं आत्म-मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आई है, जिसमें उनकी अपनी भावनाएँ, परंपराओं के प्रति क्षोभ, निजी जीवन के सुख-दुख, आशाएँ, वेदना इत्यादि का एक सजीव चित्रण दिखाई देता है। इसी प्रकार गुप्त काल भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहा, जिसका उद्भव प्राय हम 4वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में मानते हैं, जो कि सामान्यतः मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का समय था। साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि इस शासन से पूर्व नाग और वाकाटक 2 राजवंश थे, जहां की कन्याएं और महिलाएं लोक संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि रखती थीं, जिसमें नाग वंश के शासकों ने हिंदू सत्ता की नींव रखी थी और वाकाटक ने उसे सशक्त बनाया था, जिस पर गुप्त शासकों ने एक महान साम्राज्य खड़ा किया। जो कि पूर्ववर्ती शासकों की कन्याएं और महिलाएं लोक संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि रखती थीं। अतएव इसका प्रत्यक्ष प्रभाव गुप्त काल की महिलाओं पर भी देखा गया। यद्यपि गुप्त काल में संगीत के दोनों पक्षों, लौकिक संगीत, शास्त्रीय संगीत के समान विकास के साथ-साथ संस्कृति, साहित्य, ललित कलाओं का बहुमुखी विकास देखने को मिला, तथापि लोक संगीत विशेष रूप से महिलाओं की भावनाओं के उद्गार का एक सशक्त और सबल माध्यम बनकर हमारे सामने आया। गुप्त काल में महिलाएं लोक संगीत के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती द्रष्टव्य हुई, जिनमें उनकी सम्मान और मर्यादा का एक सशक्त और सबल रूप दृष्टिगोचर होता है, जिसमें प्रथमतः चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो कि अपनी संगीत कला प्रियता और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी। इनके पश्चात दत्त देवी का नाम आता है, जो कि समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण भार्याओं में से एक थी। यह भी संगीत की लोक संगीत विधा में विशेष रूप से पारंगत थी। इनके अतिरिक्त अन्य महान महिलाओं में प्रभावती गुप्त का नाम आता है, जो कि गुप्त साम्राज्य की राजकुमारी एवं कुबेरनाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनमें भी अपनी माता कुबेरनाग और अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के समान लोक संगीत कला के उच्च गुण विद्यमान थे। ये विशेष रूप से धार्मिक तत्वों से संबंधित महिला थी। इनके द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त लोक संगीत के संरक्षण के साथ साथ उसके प्रचार प्रसार के भी कार्य किए गए, जिसके प्रमाणिक साक्ष्य हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख में प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में न केवल रानियां, राजकुमारियां, अपितु साधारण महिलाएं भी लोक संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि रखती थी। तत्कालीन महिलाओं को लोक संगीत के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान था, जैसे लोक गायन, वादन, नृत्य का समान रूप से ज्ञान था, जिसके साक्ष्य के रूप में हमें सारनाथ की नृत्य प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसमें महिलाओं की नृत्य के विविध वाद्यों के वादन का एक सामूहिक चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास, जो कि गुप्त काल के एक महान नाटककार एवं कवि थे, उनके ग्रंथों से हमें ज्ञात हुआ कि उनके नाटक गुप्त काल में उत्सवों और मेलों में खेले जाते थे, जिनमें महिलाएं नायिका अर्थात मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई देती थी। इसके अतिरिक्त अजंता के मंदिर में भी महिलाओं के कुछ लोक संगीत से संबंधित चित्रण प्राप्त होते हैं। इसमें वे पूर्ण श्रृंगार के साथ भाव भंगिमा सहित नृत्य करती हुई चित्रित है। इन नर्तकियों के आसपास महिलाएं विविध प्रचलित लोक वाद्य जैसे डफ, डमरू इत्यादि वाद्यों का वादन करते हुए चित्रित हैं। इन मंदिरों की छतों पर भी एक वृत्ताकार रूप में इनके नृत्य, गायन, वादन का एक चित्रण है, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि उस समय की महिलाओं के लोक संगीत में लोचता, सुकोमलता एवं मृदुलता जैसे तत्वों की विद्यमानता थी, जो कि चित्रण को अगर हम देखते हैं तो हमें सहज ही महसूस होता है वो। इस प्रकार तत्कालीन महिलाओं के लोक संगीत जो है महिलाओं द्वारा 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता था, जो कि बलिदान, मंदिरों, राजसभा मंचों इत्यादि में उनको जो लोक संगीत का प्रयोग करते थे, वो अवसरानुकूल प्रयोग करने की विधा जो थी, वो उन महिलाओं में अच्छी तरह से विद्यमान थी।
इससे सिद्ध होता है कि गुप्त काल में महिलाओं की लोक संगीत में जो भूमिका थी वो ख्याति प्राप्त भूमिका रही है। यद्यपि सामाजिक पहलुओं में पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं को द्वितीय भूमिका रही, तथापि लोक संगीत, कला आदि के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा प्राथमिक और विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। गुप्त काल की महिलाओं में लोक संगीत उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ था, जैसे समयानुसार जन्म, मृत्यु, विवाह आदि पर वो समय समय पर विभिन्न लोक संगीत का आयोजन करते थे। जैसे महाराज समुद्रगुप्त जब युद्ध पर जाते थे या युद्ध से विजय प्रांत वापस आते थे, तो महल की महिलाओं के द्वारा लोक संगीत गायन वादन का यशोगान किया जाता था। इसके अतिरिक्त ईश्वरीय आराधना हेतु गणिकाओं की विशेष रूप से नियुक्ति की जाती है, जिन्हें की समाज में विशेष आदर और सम्मान प्राप्त था। गुप्त काल में महिलाएं अपने भावों को लोक संगीत के माध्यम से प्रकट करने की एक विशिष्ट योग्यता रखती थी, जिसका अनुकरण परवर्ती कालों में भी किया जाता रहा है। वे महिलाएं जो संगीत आदि कलाओं में रुचि रखती थीं, उनकी ज्ञाता थी, उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, जिसके साक्ष्य हमें गुप्तकालीन साहित्यिक अभिलेखीय स्रोतों में, मंदिरों पर उत्कीर्ण चित्रकारी पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जो कि गुप्त काल में महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका को दिग्दर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन महिलाओं द्वारा लोक संगीत के क्षेत्रों में लोक संगीत को एक स्वर्णिम स्वरूप को निखारने में विशेष योगदान दिया गया, जो कि परवर्ती कालों में लंबे समय तक अनुकरण किया गया। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने पेपर को प्रेजेंट करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा सक्सेना आपके शोध पत्र के लिए। थैंक यू मैम। हमारे अगले डेलीगेट हैं पूजा सेठ फ्रॉम किशोरी रमन गर्ल्स पीजी कॉलेज मथुरा। पूजा सेठ हमारे साथ हों, कृपया कैमरे पे आएं। We welcome you and request you to read Good out afternoon, the paper. ma'am. Good afternoon. First of all, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to present my paper on gender equality within police services, a case study of district Ghaziabad. Myself, Pooja Seth. I am an assistant professor in Kishori Raman Girls PG College, Mathura, Uttar Pradesh. Gender equality can be described as equality of opportunities, entitlements, and participations in decision-making for every human being, regardless their gender. Being a fundamental right, which is a natural condition for any dignified society and a developed country, gender equality is recognized by the United Nations as Sustainable Development Goal number 5 in the Agenda 17 of Millennium Sustainable Goals. As on the screen, ma'am, is there any option for screen sharing? Hello? Ma'am, am I Please audible? continue. Yes, you're audible. Please continue. We are hearing you. Okay, thank you. Just a second. PowerPoint. There are the important factors for the gender equality, like work-life balance and organizational culture, gender balance in leadership and decision-making, gender equality in recruitment and career progression, integrating the gender dimensions into research and teaching content, measures against gender-based violence, including sexual harassment. The objectives of my studies are assessment of gender equality within police services in Ghaziabad district of Uttar Pradesh. I have used primary sources through questionnaire and I interviewed 135 police women. In Uttar Pradesh, there are 3,20,000 police personnel, in which 89% are men and only 11% are women. The same pattern follows also in the Ghaziabad, where in 5,164 police personnel, there are 90% male police and only 10% are women police personnel. The key points of the questionnaires are: do women experience gender discrimination at workplace? Job assignment depend on the gender.
is gender influencing career growth because of targeted job assignment of other factors? Are women treated differently because of the gender? So my observations depicted that the 73% of the women police personnel experience gender discrimination at their workplace. And further, 79% of the women police personnel feels that their seniors consider their gender in delegating the job assignments. Further digging into the type of job assignments, 61% of women express that they are mostly assigned the cases related to women and children. 65% of women police personnel feel that gender influences their career progression too. Not different from the rest of the society, in the police services, which is considered a symbol of power and strength in the society, there too women are treated in a specific manner just because of their gender. This is witnessed by the data here, which shows 53% of women agrees that they are treated differently by their peers. The summary of my paper is that gender inequalities observed in terms of total police personnel, gender representations. Within police services, gender discrimination is observed at different levels. Like at higher level, there are very less numbers of women police personnel, comparatively the lower ranks. Gender equality demands the equal claim on education and career prospect with a focus on cognizing and solving power imbalances. Gender equality is an important factor and measures should be taken to naturalize imbalances for overall development of the society. Thank you, ma'am. Thank you so much, Pooja, for your paper presentation. And once again, we would like to give chance to Deepti Vishwakarma. You are with us. Let us see if the internet speed is good. Kindly present your paper. जी मैम, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीप्ति विश्वकर्मा, श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय की शोधार्थिनी आपके सामने एक शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वर्तमान में संगीत का महिलाओं पर प्रभाव। भारतीय नारी के जीवन में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का अत्यधिक महत्व होता है। वह प्रत्येक वस्तु को इतनी सहजता से अपना लेती है कि दोनों में विभिन्न नहीं किया जा सकता। भारतीय नारी सभ्यता के आरंभ से ही घर की अधिष्ठात्री देवी रही है, घर के सभी क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु रही है। वह संगीत में जो मधुरता पाई जाती है, वह भी माँ सरस्वती की देन है, जो कि संगीत की देवी मानी गई है। भारतीय नारी के जीवन में आरंभ से ही संगीत का बड़ा महत्व रहा है। सभ्यता के विकास के पश्चात जब मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना शुरू किया था, तब भारतीय नारी की दिनचर्या ईश्वर की संगीतमय अर्चना से आरंभ होती थी तथा विवाह आदि व मांगलिक कार्यों पर भी नारियों के गायन तथा नृत्य को शुभ व आवश्यक माना जाता है। महिलाओं में संगीत का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत एक ऐसा शब्द है जो हम सभी को जोड़े रखता है। महिलाओं के लिए संगीत एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें अपने स्वयं की शक्ति और खुदगर्जी को जगा सकता है। संगीत के माध्यम से महिलाएं अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। ये उन्हें एक ऐसा मौका देता है जहां उन्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और व्यक्त करने का अवसर मिलता है। संगीत के साथ नृत्य भी महिलाओं के लिए एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व को प्रकट करने का मौका मिलता है। महिलाएं संगीत और नृत्य के माध्यम से अपने जीवन के प्रति नए साहस और उत्साह का अनुभव कर सकती हैं। महिलाओं के लिए संगीत का प्रभाव केवल उनकी खुदगर्जी और व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। संगीत सुनना और बजाना दोनों ही तरीकों से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का माध्यम है।
स्वतंत्रता के बाद के काल में महिलाओं को संगीत के क्षेत्र में अधिक प्रोत्साहन और अवसर मिलने लगे। सरकार की ओर से सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी से महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान किए गए जिससे उनकी प्रतिभा विकसित होकर लोगों के सामने आई। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक प्रसिद्ध महिला कलाकार हुई जिन्होंने संगीत के विकास में बड़ा योगदान दिया। साथ ही वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची, जैसे कि महिला संगीतकार है गिरजा देवी। काशी नगरी की गिरजा देवी एक सांगीतिक परिवार में जन्मी थी। ये सैनी घराने की गायिका हैं। ख्याल और ठुमरी की सफल गायिका होने के साथ साथ ये भजन, लोकगीत, कजरी, दादरा आदि के गायन में भी प्रवीण हैं। किशोरी ओमनकर ये सुप्रसिद्ध मोगूबाई कर्णिकर की सुपुत्री हैं। आपके संगीत की शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की तथा इन्होंने संगीत को एक नया रूप प्रदान किया। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म संगीत में परिवार में हुआ था जहाँ पीढ़ियों से संगीत विद्यमान था। इन्होंने ध्रुपद, दयाल, टप्पा, ठुमरी, होली, कजरी, चैती एवं भजन आदि गायन शैली में पूर्ण परंपरागत गायिका के रूप में संपूर्ण देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। बेगम अख्तर ठुमरी, गजल, गीत, दादरा, कव्वाली के अनन्य गायिका बेगम अख्तर ने अपनी विलक्षण गायन शैली द्वारा अपना नाम संगीत इतिहास में अमर कर लिया। गंगूबाई हंगल किराना घराने की गायिका का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठतम गायिका पद्म भूषण गंगूबाई हंगल ने नाम से आज भी कोई भी अपरिचित नहीं है। आपने संगीत में विशेष योगदान दिया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं का संगीत में प्रेम इसमें रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति विश्वकर्मा। I think these were the speakers that we had with us today. अब मैं हमारे इस टेक्निकल सेशन की रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर प्रतिभा शर्मा जी को इनवाइट करती हूँ कि वे आज के पेपर प्रेजेंटेशंस पर अपने व्यूज दें। धन्यवाद प्रोफेसर मेधा सचदेव, सभी पार्टिसिपेंट्स। पहले तो सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ अध्यक्षता का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आयोजन समिति की विशेष रूप से आभारी हूँ। साथ ही साथ एक जो पेपर जितने भी प्रेजेंट किए गए डॉक्यूमेंटेशन पर काम किया है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में लेकिन रिसर्च का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है और धीरे धीरे हम उसकी कहना चाहिए फाइंडिंग पर पहुंचते हैं। लेकिन प्रयास बहुत अच्छे हैं और इन पर जब आप इनको तलाशेंगे, इन पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही उम्दा किस्म में निखर कर आएंगे। यहाँ मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक बहुत अच्छा है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात कही गई है और इसी टॉपिक पर मैं क्योंकि इतिहास की विद्यार्थी हूँ तो कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगी। मैं बात करना चाहूंगी स्त्रियों के अस्तित्व की। इस टॉपिक को क्यों चुनने की जरूरत पड़ी इस बात की, और स्त्री अस्मिता, स्त्री अस्तित्व, आखिर इन सब चीजों की हमें जरूरत क्या है। हम यदि इस आधार पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऋग्वेदिक एक श्लोक का मनन करते हैं कि यत्र नार्यस्ते रमन्ते तत्र देवता। उस श्लोक को ही मैं पूछती हूँ और मेरे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं कि उस ऋग्वेद में ही जहाँ पुरुषों की कामना के लिए कि हमारे पास बेटा पैदा हो, इस बात के लिए ढेर सारे श्लोक हमें मिलते हैं कि वो हमारे पास आए और हमारी संतति की वृद्धि करे। जहाँ ये बात कही जाती है कि हमारे पशु जो है वो सुरक्षित रहें और हमारे पास भर के जो है वो पशु रहें, वहाँ स्त्री की कामना के लिए एक भी श्लोक हमें नहीं मिलता है। ये जो पितृसत्तात्मकता है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से दिखाई देती है और वो धीरे धीरे हम जब बुद्ध को भी इस बात के लिए परेशान होना पड़ा कि जब उनसे कहा कि संघ में स्त्रियों को
प्रवेश मिलना चाहिए, तो उनको भी सोचना पड़ा, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और बाद में जब स्त्रियों ने इसको प्रतिरोध के तौर पर खड़ी हो गई कि नहीं हमें जाना है उसमें और करना है, तब उन्होंने बहुत मान मना के बाद उनको परमिशन दी। इसी तरह से जो थेरी गाथा है, जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं, उन्होंने थेरी गाथा लिखी हुई है और भिक्षुणी को ही थेरी कहा जाता है। तो उन्होंने जो मेंशन किया है, उन्होंने ये कहा है कि जितना उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी, ये हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, कि जिस समय जो परेशानियां थी कि हम कम से कम जो समाज की प्रॉब्लम्स थी, जो हमारे ऊपर दुनिया भर के वो थे, उनसे हमने बचने के लिए हम इस तरह से बिछुड़ी बन गए हैं, तो कम से कम हम एक सिक्योर पोजीशन में आ गए हैं, जहां पर हमारे पास सोशल जो बंधन है वो हमारे ऊपर नहीं लगे हुए हैं। हम इन उद्देश्यों से हम चलते हैं और हम आते हैं मध्यकाल पर। और मध्यकाल में ऐसे तमाम उदाहरण हैं, हालांकि क्योंकि उनको सबकी चर्चा कर पाना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मध्यकाल में जब आते हैं तो ये स्टेटमेंट साफ एकदम से दिखाई देता है कि स्त्री अगर या कन्या है तो उसे विवाह से पहले पिता के अधीन, शादी हो जाने पर पति के अधीन, और जब अगर वो विधवा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसे अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शमशेर सिराज अफीफ एक तत्कालिक तुगलक वंशीय इतिहास लिखा है इन्होंने, और उसमें कंटेम्पररी हिस्ट्री को जब वो लिखते हैं तो वहाँ फिरोज तुगलक ने जो स्त्रियों पर बंधन लगाए थे, उसके बाद वो एक स्टेटमेंट यहाँ देते हैं कि फिरदौसी को, जो ईरानी परंपरा है, उसको कोट करते हुए कि स्त्री और सांप 2 भयानक जीव हैं जिनको कि कुचल देना चाहिए। तो जिन परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, यानी हमारे पास लगातार रजिया सुल्तान पूरे 1200 से लेकर 1700 तक का हमारा मध्यकाल का जो पीरियड है, जो कि आप पर पीरियड माना जाता है, उस पूरे समय में एकमात्र स्त्री जो कि सुल्तान बनती है, उसका टाइटल सुल्ताना नहीं है, उसका सुल्तान है। वो इतनी सारे उसके साथ विद्रोह करके वो वहाँ सुल्तान के पद पर पहुंचती है। और उसका भी एक कंटेम्पररी इतिहासकार है मिनाजुद्दीन सिराज, जो कि इतिहास में उसको दर्ज करते हैं कि उसके पास बहुत सारे गुण थे, बहुत सारे गुण, यानी वो प्रजाबासल थी, दयालु थी, वो कुशल तीरंदाज थी, वो धनुर्धारी थी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन बाद में क्वेश्चन ये आता है कि ये किस काम के, क्योंकि वो एक स्त्री थी। तो जहाँ स्त्रियों की परिभाषा इस तरह से समाज में चलती रही है, और बाद में उसका विरोध भी उसकी अपनी इन्हीं अमीर वर्ग द्वारा किया गया, और वो अमीर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा जो उसको टारगेट किया गया वो यही बात थी कि उसका स्त्री होने के बावजूद उनको इस तरह से ऑर्डर देना, जिस पर कि वो ये समझते थे कि ये तो दे ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी तो वो एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन से इसको आगे नहीं बढ़ना। अमीर खुसरो, जिसको आप हमेशा चर्चा में रहते हो, बहुत एक लोकगीत है अभी, क्योंकि लोकगीत की बात हो रही थी तो मैं उस लोकगीत को, क्योंकि वो अक्सर हमारे हम सुनते हैं उस लोकगीत को, और मैं उसे यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि जिसमें कि उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि प्रश्न है एक जो स्त्रियों के माध्यम से पूछा है कि काहे को ब्याही विदेश, सुन बाबुल मेरे, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, चित हांकों हक जाए, हम तो बाबुल तोरे बन की चिड़िया, जिधर उड़ाओ उड़ जाए, किनको छवाए बाबुल महल तिवारे, किनको रख चौहे विदेश, बेटों को छवाए बाबुल महल तिवारे, बेटी को रच दो विदेश। यानी जहां हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी जो सिस्टम है, वो महिलाओं को शुरू से अब तक रोकते रहे हैं, जहां एक सोसाइटी का एक करेक्टर जो है वो ये सामने आता रहा है कि स्त्रियों की खांचा ये है और मर्दों का ये है, स्त्री को इस रूप में होना चाहिए और इस पुरुष को इस रूप में होना चाहिए। ये जो विभेजन है या विभाजन है हम जो देख रहे हैं, शायद इसकी जरूरत नहीं थी, और अगर ये जरूरत, अगर इसको हम खत्म करते तो शायद
स्थिति आगे बढ़ती। और जब हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनमें स्त्रियों की समस्याओं को भी सामने लाया गया। 19वीं शताब्दी से ये मूवमेंट्स जो हैं वो सामने आए, जिनमें कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझा गया कि उनको पढ़ने का राइट मिलना चाहिए, उनको सती प्रथा है या उनकी जल्दी विवाह नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें जो है उनके साथ की गई। लेकिन इतने सबके बावजूद भी जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि वहां भी उनके जो खांचे हैं उनको तय किया गया। यहाँ भी अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो मैटर्स रहे हैं, इतने सारे कानून मिलने के बावजूद भी, इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अब हमें ये बहुत बड़ी पड़ताल का विषय होना चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए कि आखिरकार अभी भी हमें ये इस तरह की सेमिनार में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को जांचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसमें ये सारे प्रश्न के विषय हैं और जिसमें मुझे लगातार लगता है कि कहीं ना कहीं वो पितृसत्तात्मकता वो जो है वो हावी रही है। बहुत सारी चीजों में ये लगता है हमें कि हम आजादी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये नजर आता है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो उतना अभी भी उनको नहीं मिल पाया है। जो रोजन लग्जमबर्ग हैं, जो कि फेमिनिस्ट एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस दिन महिलाओं की काम का हिसाब लिया जाएगा, उस दिन पता लगेगा कि इतिहास की सबसे बड़ी चोरी तो यही है कि हम उनके इतिहास को उनको किसी भी तरह का कोई क्रेडिट देना नहीं चाहते। यानी हम काम भी कराना चाहते हैं और क्रेडिट भी नहीं देना चाहते, उसका कोई मूल्य भी उनको नहीं देना चाहते। तो इस तरह की जो छिपावट है, इस तरह की जो बनावट है समाज की, वो शायद बदलनी होगी। तब अस्मिता संबंधी जो प्रश्न है उनका कोई निवारण या कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं सोचती हूँ कि इन 2 दिन चलने वाली इस सेमिनार में इस बिंदुओं पर काम किया जाएगा और बहुत कुछ रेलेवेंट जो होगा और वुमेन आत्मनिर्भरता के प्रति जो भी मुद्दे हैं उन सबको उठाया जाएगा और धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं और धीरे धीरे यही चीजें जो है वो समाज में जाती हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही इसी तरह के प्रयास चलेंगे। मैं एक और उदाहरण यहाँ दूंगी। एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, क्योंकि इतने सारे विरोधों के बावजूद भी हाँ महिलाएं ऐसा नहीं कि बिल्कुल हट गई हैं या नहीं है। तो ये खबर लहरिया स्पेशली महिलाओं द्वारा चलाने वाला न्यूज़पेपर है जो कि 2002 में स्टार्ट किया था और इसकी इस समय पर 8 महिलाओं ने इसे शुरू किया था। गांव की महिलाएं जो न कि लिखना जानती थी, पढ़ना मतलब बहुत कम रिसोर्सेज में, बिल्कुल देहाती महिलाएं जो कि उसमें रिपोर्टर भी वही हैं, प्रेस का काम भी वही कर रही हैं और वो उसको न्यूज भी कलेक्ट करती थी, सारी चीजें रख करके और उसको चलाती थी। आज उस न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप है वो लगभग, क्योंकि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और 1 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। तो 2002 से लगभग 20 वर्ष के सफर में वो उसने बहुत तरक्की की है और उस पर अभी एक फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ये राइटिंग विद फायर, जो कि ऑस्कर के लिए चुनी गई थी। तो इस तरह के महिलाओं के छोटे छोटे इतने विरोधों के बावजूद भी प्रयास हैं जिसमें कि वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और वो चली जा रही हैं। एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एक संजीव कौशल है, उनकी एक कविता है जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी इसको फेस करने के लिए, इस बात को कहने के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी कि किस तरह से हम इस अभी तक के इस स्त्रियों की इसको देखते रहे हैं। मैंने कहा हाँ, उसने कहा ना, मैंने जोर से कहा हाँ, उसकी ना सहम गई, मैंने और जोर से कहा हाँ, उसकी ना बिखर गई। इस तरह पुरुष की हाँ स्त्री की ना को निगल गई। ये जो बातें हैं वो लगभग इसी तरह से हैं और मैंने इनको समराइज करके बताने की कोशिश की है कि जब तक, और ये छोटे छोटे प्रयास सेमिनार के माध्यम से इन सभी से ये चेतनाएं पैदा करेंगे और हम विमेन जो है वो आत्मनिर्भर हो रही हैं लगातार, और भी ज्यादा आगे के 20 वर्ष में शायद हम
वो अपना जो इक्वलिटी का जो रोल है वो अदा कर पाएंगे। फिर से मैं आयोजन समिति को सभी को धन्यवाद देती हूँ और उनकी सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रतिभा शर्मा जी, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना अमूल्य समय हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी डेलीगेट्स जो आज हमारे साथ अपने विचार विमर्श किए, अपना टाइम उन्होंने हमें दिया। वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी कलीग डॉक्टर स्वाति कुश, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हमारे कॉलेज में, उन्होंने मेरा साथ दिया, उनका बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारी टेक्निकल टीम प्रीति जी और प्रांशु जी, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, एंड ऑल द technical staff and cameramen. We thank everybody. Thank you so much. With this, we conclude this technical session. Thank you. I'm sorry, just a minute. I excuse for this floor. I just forgot to present this token of love from our college to our resource person, प्रतिभा जी। एक महाविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह हम आपको दे रहे हैं, हमारे यादगार स्वरूप। कृपया इसे ग्रहण करें। Thank you so much, all of you. Thank you.